Good morning to all. First of all, I would like to welcome our most respected Principal Sir, our today's Chief Guest, Shri A.N. Sharma Sir, my learned colleagues, respected parents, and most valuable all dear students. श्री A.N. शर्मा जी को किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनके एक स्टूडेंट हैं जिनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। आप सब समझ गए होंगे, नवाब ऑफ नजफगढ़, मुल्तान का सुल्तान। हाँ, बिल्कुल सही आपने समझा, हम वीरेंद्र सहवाग के बारे में बात कर रहे हैं। श्री A.N. शर्मा जी के शिष्य रह चुके हैं सहवाग जी, तो इनको किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। A.N. शर्मा सर को इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इवन रणजी ट्रॉफीज़ में भी काफ़ी प्लेयर्स निकाल के दिए हैं। श्री A.N. शर्मा जी। प्यारे बच्चों, आपके स्पोर्ट्स डे के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और स्पोर्ट्स डे खासकर इसलिए मनाया जाता है कि आपका स्वास्थ्य बना रहे, खेलों में इंटरेस्ट हो, क्योंकि जो बच्चा खेलों में शुरू में स्कूलों में ही भाग लेगा वही आगे अपने स्कूल को, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। खेलों में हिस्सा लेने के लिए बहुत आवश्यक है आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज के ज़माने में स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि जो ज़रूरत से ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का चिंता कर सके। स्कूल में रहते हुए तो आप थोड़ा बहुत खेलों पे ध्यान दे सकते हो, पर उसके ऊपर अपना स्वास्थ्य पे भी ध्यान दे सकते हो। पर स्कूल से निकलने के बाद शायद आपको ये दिन दोबारा नहीं देखने को मिलेंगे। तो मेरा आपसे सभी से यही निवेदन है कि खेलों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। और मैं जो भी मेरे को सुन पा रहे हैं, चाहे वो स्टाफ हो या बच्चे हो या टीचर्स हो, मैं ये कहूँगा कि स्पोर्ट्स में रुचि दिखाना, उसमें पार्टिसिपेट करना आज के समय में बहुत ही आवश्यक है। प्यारे बच्चों, आपको राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं केंद्रीय विद्यालय शकूर बस्ती के विद्यार्थियों को आपके खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप खेलों में बहुत आगे बढ़ो, तरक्की करो और राष्ट्रीय लेवल तक या अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचो, यही मेरी शुभकामनाएं। Thank you, A.N. Sharma sir. Now we will discuss on Major Dhyan Chand. About his life, Dhyan Chand, born on 29 August 1905, was an Indian field hockey player. He is known as the greatest field hockey player of all time. His birthday, 29th August, is celebrated as National Sports Day in India. He received the Padma Bhushan from Government of India in 1956. Major Dhyan Chand earned 3 Olympic gold medals in field hockey. These were at the 1928 Amsterdam Olympics, 1932 Atlanta Olympics and 1936 Berlin Olympics. Early life. Dhyan Chand was born on 29 August 1905 in Allahabad. His father was in British Indian Army, not Indian Army. At that time, he was in British Indian Army and he played hockey in the army. The family moved after because of transfer of his father to Jhansi, Uttar Pradesh, and they settled there. Chand joined the Indian Army at the age of 16. The Hindi word Chand means the moon. Dhyan was given the nickname Chand because he would wait until the moon was out so that he could practice hockey. About international competitions of Major Dhyan Chand. Dhyan Chand's first international competition was with the Indian Army in New Zealand. The Army later gave the Dhyan Chand permission to compete for the place on the Indian Olympic team for field hockey. During 1928 Olympics,
Chand was the top scorer of the tournament, scoring 14 goals in just 5 games. A newspaper report about India's team said, "This is not a game of hockey but magic." Dhyan Chand is in fact the magician of the game. Chand was selected for 1932 and 1936 without any trial, and India defeat 1932 Olympic final against USA by 24-1, which is a world record at that time. Dhyan Chand was again playing for 1936 Berlin Olympics, and India defeated Germany 8-1 in the final of the gold medal. Chand scored 3 goals. About the legacy of Major Dhyan Chand, the Dhyan Chand Award is an award in the India for lifetime achievement in sports. The National Stadium, Delhi was renamed Dhyan Chand National Stadium in 2002 in his honor. Now I would request Principal Sir for his motivational speech. Principal Sir. केंद्रीय विद्यालय सकूरबस्ती के बच्चे हाईली डिसिप्लिन्ड हैं, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई तथा खेल कूद में पूरे जोश के साथ भाग लेते रहे हैं। इस बार का एक नया प्रयोग ऑनलाइन एनुअल स्पोर्ट्स डे हम लोग मनाने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी बच्चे बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करेंगे और मेरे उम्मीद पे जैसे खरा उतरते रहे हैं
इस बार भी उतरेंगे। धन्यवाद। थैंक यू प्रिंसिपल सर। आइए अब हमारे स्कूल के कुछ बच्चों के व्यूज़ जानते हैं कि वो राष्ट्रीय खेल दिवस को कैसे मनाएंगे और उसके ऊपर अपने व्यूज़ देते हैं।
I am Simran, student of class 10, KV Shakur Basti, New Delhi, and I am really glad that my school is taking such a sniffing initiative towards implementation of online classes. Our school always embellishes us for new experiences, and I feel that this experience is the best for both the teachers and the students. The online classes are going on quite smoothly, and they are really interactive and realistic during the teacher's explanation and demonstration. Because of the online classes, I am able for the preparation of my board exams also without any hindrance. Myself Divya Pari of class 8 studying in Kendriya Vidyalaya Shakur Basti. During online classes, I use Google Classroom, Google Meet and Diksha platform. I attend my class safely and through this I complete my all assignments regularly and timely. Thank you. नमस्कार, आज मैं आप सबको राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। भारत में हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की मुख्य वजह है हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। हॉकी जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, मेजर ध्यानचंद जी इसी खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं, इसलिए उनके जन्म दिवस के रूप में ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद जी सन 1922 में सेना में भर्ती हो गए और 4 वर्ष के पश्चात न्यूजीलैंड दौरे पर गई भारतीय हॉकी टीम में ध्यानचंद जी का चयन हो गया। सन 1928 में जब भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक्स खेलने गई, जिसमें भारतीय टीम ने ध्यानचंद जी की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया को 6-0, न्यूजीलैंड को 3-0, इसके अलावा भी बाकी मुकाबलों में सभी टीमों को धूल चटाई और पहला ओलंपिक्स स्वर्ण पदक जीता। इस जीत पर मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी विज़ार्ड के खिताब में सम्मानित किया गया। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक शुरू हुआ, जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने मेजर ध्यानचंद जी की नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए जर्मनी की टीम को धूल चटाई। इस महामुकाबले को जर्मन के तानाशाह हिटलर खुद इस मैच को देख रहे थे। जिस हिटलर को तोपें तलवारें नहीं डिगा पाई, उसे हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी ने अपने खेल के दम पर सिर झुकाने के लिए मजबूर कर दिया। बड़े से बड़ा लालच देने के बाद भी ध्यानचंद जी ने हिटलर के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्होंने भारतीय फौज और हॉकी की सेवा में अपना जीवन त्याग दिया, जिसके लिए सन 1956 में उन्हें पद्म भूषण के खिताब से सम्मानित किया गया। सन 1948 में ध्यानचंद जी ने संन्यास ले लिया। धन्यवाद। Good afternoon, respected teacher and my dear friend. Today I am going to talk about National Sports Day. August 29 is celebrated as National Sports Day. It is the birthday of Major Dhyan Chand, one of the best sportsmen ever who have graced the game of hockey. Hockey always have a special place among Indians. When our generation sometimes look back with the sense of belief about the golden era in which India won 3 gold medals, that era was led by Major Dhyan Chand, in which he scored 33 goals in 12 matches. Dhyan Chand was born in Allahabad. In the Olympics of 1936, Dhyan Chand played mind-blowing game. He scored over 400 goals in his career. On 3 December 1979, he passed away, but remained a legendary figure for Indian as well as world hockey. Friends, sports is a very important activity for students. It helps us to develop multiple qualities like sense of togetherness, leadership, stamina, skill, strategy, teamwork. The quality will help us to excel in our life. National Sports Day is not only a tribute to one of the greatest in the game, but it also reminds us the importance of sports in our life. Thank you. Thank you, students. Now I invite Mr. Kuldeep Parmar sir for vote of thanks. Kuldeep sir. आज 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल दिवस उत्सव का आयोजन करने के लिए इस उपलक्ष्य पर मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का विशेष धन्यवाद करता हूं। आज कोरोना काल में बच्चे जब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल दिवस उत्सव का आयोजन करने के
रूप में मनाने का फैसला किया है। इस अवसर पर धन्यवाद मुख्य अतिथि जी का, एएन शर्मा जी जो कोच हैं विश्व प्रसिद्ध बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के। जैसे इन्होंने वीरेंद्र सहवाग को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया, उसी तरीके से हम आशा करते हैं कि हमारे स्कूल के नौनिहाल बच्चे भी इसी तरीके से खेल के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे। इसलिए इन बच्चों का भी धन्यवाद प्राचार्य जी का भी, जिन्होंने इतना इनिशिएटिव लेकर के थोड़े से समय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। धन्यवाद हमारे PH&E जो खेल शिक्षक हैं रविपाल सिंह जी का, जिन्होंने थोड़े से समय में बच्चों को ट्रेन किया, उनको कोचिंग दिया और किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है वो सारा का सारा बताया। खेल जिसका मुख्य काम होता है बच्चों में टीम वर्क प्रमोट करना, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, फिटनेस और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डिसिप्लिन, जो आज कोरोना काल में हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो इसीलिए इन बच्चों को इस खेल उत्सव के बारे में बताने के लिए और ऑनलाइन किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसके लिए हमारे खेल शिक्षक का भी धन्यवाद सारे बच्चों का और अभिभावकों का कि जो आज सारी ऑनलाइन क्लासेस में हमारा कोऑपरेशन कर रहे हैं, बच्चों को कंट्रोल भी कर रहे हैं। अपने स्टाफ का भी धन्यवाद जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को डे टू डे लाइफ के बारे में और अपनी सिलेबस के बारे में अपडेट करते रहे। और विशेष धन्यवाद एक बार फिर से केंद्रीय विद्यालय संगठन का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। धन्यवाद, थैंक यू। Hockey legend Major Dhyan Chand. Dhyan Chand is the most extraordinary, the greatest field hockey player. Let's take a look at the amazing journey of the wizard who was known for his superb ball control, the man who scored more than 400 goals in his career. The man responsible for earning 3 Olympic gold medals. Dhyan Chand was born on 29th August 1905 in Allahabad, Uttar Pradesh, into a Maurya Khushua family, to mother Sharda Singh and father Sameshwar Singh, who was in British Indian Army. His father was often transferred, so the family was exposed to different cities. This also became a hindrance as Dhyan Chand could not continue his education for long. His education stopped approximately after 6 years of schooling. The family then settled in Jhansi, Uttar Pradesh. His father got a small piece of land for his services. Dhyan Chand had 2 brothers, Roop Singh, also a player, and another brother, Mool Singh. What is interesting is the fact that when Dhyan Chand was young, he was not into sports. According to the reports, he loved wrestling. At the age of 16, he joined Indian Army, and at that time he used to practice after the duty hours and night. He waited for the moon so that the field would light up and helped increase the visibility. Due to this, it is believed that he was named Chand, literal meaning moon, by his fellow players. It was during 1922 to 1926 that he played hockey tournaments and regimental games in Army. Then he was selected in the team that was to go to New Zealand. The Indian Army team won 18 matches, drew 2 and lost only 1. When Dhyan Chand returned, he was promoted to Lance Nayak. The newly formed Indian Hockey Federation was making a team for the 1928 Amsterdam Olympics. In 1925, an inter-provincial tournament was held to select India's national field hockey team. Dhyan Chand got permission from the army to play for the United Provinces team. He was immediately noticed for his skills and was on the team for Olympics. The final match in Olympics took place on 26th May, with India facing the home team of the Netherlands. It was tough as top players were not well, including Dhyan Chand. Despite all odds, India won its first Olympic gold medal. Dhyan Chand was the top scorer of the tournament, scoring 14 goals in 5 matches.
It was stated that this is not a game of hockey but magic. Dhyan Chand is in fact the magician of hockey. He was then automatically selected for the 1932 Los Angeles Olympics. India's first match in the 1932 Olympics was against Japan, which it won on the score of 11-1. The team kept moving ahead and once again won the gold in finals. After the Olympics, the team went on an international tour covering United States, England and several other countries. By the end of the tour, India had won 34 matches out of 37, with Chand scoring 133 out of the 330 goals scored by India. He became the captain of the Indian hockey team in 1934 and he led the team to the 1936 Berlin Olympics. Dhyan Chand's magic again got a gold medal for India. This was India's third successive gold in field hockey. Let's take a look at his personal life. He got married to Janki Devi in 1936 and had 7 sons from his marriage. In 1956, at the age of 51, he retired from the army with the rank of a major. After he retired, he coached for a while and then settled in Jhansi. According to the reports, this legend spent the last years of his life in poverty. It is unfortunate as he was forgotten. He lost hope and suffered from liver cancer. He died at the age of 74 on 3rd December 1979. Let's take a look at his various achievements. India's highest award for lifetime achievement in sports is named after him, the Dhyan Chand Award. A statue of this hockey legend with 4 hands and 4 sticks was erected in Vienna, depicting his master control over the ball. 29th August, his birthday, is celebrated as National Sports Day in India. AstroTurf hockey pitch at the Indian Gymkhana Club in London has been named after Indian hockey legend Dhyan Chand. He was awarded the Padma Bhushan in 1956 by the Indian government. The Union Minister of India gave the 20th National Award 2012, namely Gem of India, to the magician of hockey Major Dhyan Chand. The award was received by his son Ashok Dhyan Chand, hockey Olympian himself. The National Stadium in Delhi was renamed Dhyan Chand National Stadium in 2002 in his honor. It is stated that in 1936 Olympics, after India played its first match, a German newspaper's headline was, "The Olympic complex now has a magic show too." The next day there were posters all over Berlin. Visit the hockey stadium to watch the Indian magician Dhyan Chand in action. It has also been revealed that Führer was so impressed by Dhyan Chand's wizardry with the stick that he offered him a chance to move to Germany and the post of colonel in his army, which the legend declined. Cricket legend Don Bradman stated, "He scores goals like runs in cricket. Whatever said is less." Major Dhyan Chand is a legend. His achievements are uncountable and stories from his life are never-ending. The final of the Olympic hockey. The wonderful Indian team in the white shorts, who so far have scored 30 goals to 0 in the tournament, are playing Germany. India score. India score again.
score. Final result was India 8, Germany 1. किसी खिलाड़ी की महानता को नापने का सबसे बड़ा पैमाना है कि उसके साथ कितनी किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। इस हिसाब से तो मेजर ध्यानचंद का कोई जवाब नहीं था। हॉलैंड में लोगों ने उनकी हॉकी स्टिक तोड़वाकर देखी थी कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं लगा है। जापान के लोगों को अंदेशा था कि उन्होंने अपनी स्टिक में गोंद लगा रखी है। हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई हों, लेकिन अपने जमाने में इस खिलाड़ी ने किस हद तक अपना लोहा मनवाया था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वियना के स्पोर्ट्स क्लब में उनकी एक मूर्ति लगाई गई थी जिसमें उनके 4 हाथ और उनमें 4 स्टिकें दिखाई गई थी, मानो वो कोई देवता हो। पूर्व ओलंपियन कमांडर नंदी सिंह ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था, अब दुनिया कहती है जी उनके हॉकी के साथ बॉल जो है चिपक जाता था। वो एक ऐसे प्लेयर थे जो कि बॉल को अपने पास रखते ही नहीं थे। ये गलत ख्याल है कि वो बहुत ड्रिबलिंग करते थे। वो बिल्कुल ड्रिबल नहीं करते थे। वो एकदम पास देते थे, सही पास देते थे और एक एक इंच का मिना हुआ पास देते थे जो कि आगे जिसको देना है पास, जिसको रिसीव करना है उसको कोई तकलीफ ना हो। उसके राइट फुट के सामने बॉल खड़ा हो और वो आगे लेके भागे। उनकी जो काबिलियत थी वो सबसे अच्छी वो थी गोल स्कोरिंग। किसी भी एंगल से वो गोल स्कोर कर सकते थे, कहीं भी हो। उन्होंने बॉल जो है वो जैसा ऐसे है कि जो 2 पोल हैं उनके दिमाग में गड़े हुए और उनके बीच में से बॉल जाना है। उनकी स्कोरिंग पावर बहुत ही अच्छी थी। ध्यानचंद की सौम्यता और नेक नियति के सभी कायल थे। ध्यानचंद की पत्नी स्वर्गीय जानकी देवी ने एक बार बीबीसी को उनके बारे में एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था। कलकत्ता गए खेलने को तो एक प्लेयर ने इनको एक सर में हॉकी मार दिया। उन्होंने उस लड़के का प्लेयर का कंधा थपथपाया, शाबाश बेटा, कोई बात नहीं है। अब 10 मिनट रह गए थे खेलने का। 10 मिनट में इनने 3 गोल ठोक दिए। तो कहने लगे मैंने बदला ले लिया। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उनके साथ खेले और बाद में पाकिस्तान के कप्तान बने INS दारा ने वर्ल्ड हॉकी के एक अंक में लिखा था, ध्यान के पास कभी भी तेज गति नहीं थी, बल्कि वो धीमा ही दौड़ते थे, लेकिन उनके पास गैप को पहचानने की गजब की क्षमता थी। बाएं फ्लैंक में उनके भाई रूप सिंह और दाएं फ्लैंक में मुझे उनके बॉल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत फायदा मिला। डी में घुसने के बाद वो इतनी तेजी से शॉट लगाते थे कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गोलकीपर के लिए भी कोई मौका नहीं रहता था। 2 बार के ओलंपिक चैंपियन रहे केशव दत्त ने एक बार हमें बताया था कि बहुत से लोग उनकी मजबूत कलाइयों और ड्रिबलिंग के कायल थे, लेकिन उनकी असली प्रतिभा उनके दिमाग में थी। वो उस ढंग से हॉकी के मैदान को देख सकते थे जैसे शतरंज का खिलाड़ी चेस बोर्ड को देखता है। उनको बिना देखे ही पता होता था कि मैदान के किस हिस्से में उनकी टीम के खिलाड़ी और प्रतिद्वंदी मूव कर रहे हैं। याद कीजिए 1986 के विश्व कप फुटबॉल का फाइनल, माराडोना ने बिल्कुल ब्लाइंड एंगल से बिना आगे देखे 30 गज लंबा पास दिया था जिस पर बुरुचागा ने विजयी गोल दागा था। किसी खिलाड़ी की संपूर्णता का अंदाजा इसी बात से होता है कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर भी मैदान की ज्योमेट्री पर महारत हासिल कर पाए। केशव दत्त का कहना है, जब हर कोई सोचता था कि ध्यानचंद शॉट लेने जा रहे हैं, वो गेंद को पास कर देते थे, इसलिए कि वो स्वार्थी नहीं थे, जो कि वो नहीं थे, बल्कि इसलिए कि विरोधी उनके इस मूव पर हतप्रभ रह जाएं। जब वो इस तरह का पास आपको देते थे तो जाहिर है आप उसे हर हाल में गोल में डालना चाहते थे। 1947 के पूर्वी अफ्रीका दौरे में उन्होंने केडी सिंह बाबू को गेंद पास करने के बाद अपने ही गोल की तरफ मुंह मोड़ लिया और बाबू की तरफ देखा तक नहीं। बाद में उनसे जब उनकी इस अजीब हरकत का कारण पूछा गया तो उनका जवाब था, अगर उस पास पर भी बाबू गोल नहीं मार पाते तो उन्हें मेरी टीम में रहने का कोई हक नहीं था। केजी कक्कड़
अपने जमाने के नामी कमेंटेटर और हॉकी खिलाड़ी थे। एक बार उन्होंने बीबीसी को पाकिस्तान में ध्यानचंद की लोकप्रियता का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। अफगानिस्तान में अगस्त के महीने में जश्न आज़ादी मनाया जाता है। मुझे 2 दफा मौका मिला कि मैं उस जश्न में शामिल हूँ। पहले 1949 में, जबकि भारत की इंडियन हॉकी फेडरेशन की टीम अफगानिस्तान गई हुई थी, और दूसरी दफा 1952 में, जबकि उन्होंने दादा ध्यानचंद को बुलाया हुआ था एज चीफ गेस्ट। ये जो जर्नी थी 1952 की, वो हमने दिल्ली से पेशावर तक बाई ट्रेन की, और लाहौर पर जब हम आए वो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था, तो इतना हजूम था कि वहाँ के जो प्लेटफॉर्म टिकट थे वो खत्म हो गए। हर एक चाहता था कि वो दादा ध्यानचंद से मिले। और आप अगर जानते हैं कि दादा ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट में थे, और सारी हॉकी उन्होंने पंजाब रेजिमेंट की तरफ से जेहलम में ही खेली, तो वहाँ के लोग जो थे वो दीवाने थे, फिदा थे, वो चाहते थे कि इस व्यक्ति के हम दर्शन करें। और जब वो गाड़ी पेशावर पहुंची, जो कि आखिरी पाकिस्तान का रेलवे डेस्टिनेशन है, तो वो गाड़ी 3 घंटे लेट थी, और हमारे पास कितना खाना था मुझे मालूम नहीं, तो उस खाना को डिस्पोज करते हुए हमें बहुत मुश्किल हुई। 1936 के ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले एक अभ्यास मैच में भारतीय टीम जर्मनी से 4-1 से हार गई। ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा गोल में लिखा, जब तक मैं जीवित रहूंगा इस हार को कभी नहीं भूलूंगा। इस हार ने हमें इतना हिलाकर रख दिया कि हम पूरी रात सो नहीं पाए। हमने तय किया कि इनसाइड राइट पर खेलने के लिए आईएनएस दारा को तुरंत भारत से हवाई जहाज से बर्लिन बुलाया जाए। जर्मनी के खिलाफ फाइनल मैच 14 अगस्त 1936 को खेला जाना था, लेकिन उस दिन बहुत बारिश हो गई, इसलिए मैच अगले दिन यानी 15 अगस्त को खेला गया। मैच से पहले मैनेजर पंकज गुप्ता ने अचानक कांग्रेस का झंडा निकाला, उसे सभी खिलाड़ियों ने सैल्यूट किया। उस समय तक भारत का अपना कोई झंडा नहीं था, वो एक गुलाम देश था, इसलिए यूनियन जैक के तले ओलंपिक खेलों में भाग ले रहा था। बर्लिन के हॉकी स्टेडियम में उस दिन 40,000 लोग फाइनल देखने के लिए मौजूद थे। देखने वालों में बड़ौदा के महाराजा और भोपाल की बेगम के साथ साथ जर्मन नेतृत्व के चोटी के लोग मौजूद थे। हाफ टाइम तक भारत सिर्फ 1 गोल से आगे था। इसके बाद ध्यानचंद ने अपने स्पाइक वाले जूते उतारे और नंगे पांव खेलने लगे। इसके बाद तो गोलों की झड़ी लग गई। दारा ने बाद में लिखा, 6 गोल खाने के बाद जर्मन रफ हॉकी खेलने लगे। उनके गोलकीपर की हॉकी ध्यानचंद के मुंह पर इतनी जोर से लगी कि उनका दांत टूट गया। उपचार के बाद मैदान में वापस आने के बाद ध्यानचंद ने खिलाड़ियों को निर्देश दिए कि अब कोई गोल नहीं मारा जाए, सिर्फ जर्मन खिलाड़ियों को यह दिखाया जाए कि गेंद पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। इसके बाद हम बार बार गेंद को जर्मन डी में ले जाते और फिर गेंद को बैक पास कर देते। जर्मन खिलाड़ियों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया और उसमें 3 गोल ध्यानचंद ने किए। ध्यानचंद के पुत्र और म्यूनिक ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता अशोक कुमार ने बीबीसी को बताया, 72 की बात है, मैं प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर हमारी टीम मौजूद थी ग्राउंड के ऊपर, और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो एकाएक मैंने देखा कि एक स्ट्रेचर के ऊपर एक शख्स चले आ रहे हैं, लोग उनको लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, इंक्वायर किया कि अशोक कुमार कौन है, तो उन्होंने पता तो मुझसे मिलने आए, और उसके बाद वो इतने भावपूर्ण तरीके से उन्होंने मुझसे बातें करी ध्यानचंद के बारे में। और उस टाइम की कटिंग्स, जो 36 की कटिंग्स जर्मन में निकली थी, उन्होंने मुझे दिखाई, और एक बंडल जो था वो पूरा दिखाया कि ये तुम्हारे पिताजी ध्यानचंद, फादर वाज लाइक दिस लाइक दैट, लाइक छोटी टूटी फूटी अंग्रेजी में, बट आई कुड अंडरस्टैंड क्या कहना चाहते हो। तो ध्यानचंद के अंदर ऐसी क्या खास बात रही होगी उस जमाने में। 36 में ब्रिटिश आर्मी में रहे और सिपाही से मेजर के पद तक पहुंचे, ये भी एक बहुत बड़ी बात उस जमाने में, जबकि हम गुलाम देश के निवासी थे, लेकिन उन्होंने भी उतनी महत्ता दी उनको कि एक मामूली सिपाही को उन्होंने एक ऑनरी मेजर का पद दिया। भारत लौटने के बाद ध्यानचंद के साथ एक मजेदार घटना हुई। फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर ध्यानचंद के फैन थे। एक बार मुंबई में हो रहे एक मैच में वो अपने साथ नामी गायक कुंदनलाल सहगल को ले आए। ध्यानचंद पर लिखी एक किताब में निकेत भूषण लिखते हैं, हाफ टाइम तक कोई गोल नहीं हो पाया। सहगल ने कहा कि उन्होंने दोनों भाइयों का बहुत नाम सुना है। मुझे ताज्जुब है कि आप में से कोई आधे समय तक एक गोल भी नहीं कर पाया। रूप सिंह ने तब सहगल से पूछा कि क्या हम जितने गोल मारें उतने गाने हमें आप सुनाएंगे। सहगल राजी हो गए। दूसरे हाफ में दोनों भाइयों ने मिलकर 12 गोल दागे, लेकिन फाइनल विसिल बजने से पहले सहगल स्टेडियम छोड़कर जा चुके थे।
अगले दिन सहगल ने अपने स्टूडियो तक आने के लिए ध्यानचंद के पास अपनी कार भेजी, लेकिन जब ध्यानचंद वहां पहुंचे तो सहगल ने कहा कि गाना गाने का उनका मूड उखड़ चुका है। ध्यानचंद बहुत निराश हुए कि सहगल ने नाहक ही उनका समय खराब किया। लेकिन अगले दिन सहगल खुद अपनी कार में उस जगह पहुंचे जहां उनकी टीम ठहरी हुई थी और उन्होंने उनके लिए 14 गाने गाए। ना सिर्फ गाने गाए बल्कि उन्होंने हर खिलाड़ी को एक एक घड़ी भी भेंट की। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।